कैसे हो दोस्तों? और वी कैन से दैट इन गुड हेल्थ कंडीशन। सो घर पे सब लोग मजे में होंगे, फैमिली मेम्बर्स भी हेल्थी कंडीशन में रहे, ऐसे ही आपको शुभकामनाएं। ये जनरल पॉइंट से फ्रेंड्स, यू नो दैट वेरी वेल, बिकॉज जान है तो जान है, तो घर पे रहो और सुरक्षित रहो, ये जो नारा है वो। Today we would like to think about the most important topic. You know that very well, chapter number 2, units and dimensions, part 11. In last part, in part number 10, we discussed the parallax method. So today we would like to think about few more points about parallax method and its application. आज का लेक्चर है दोस्तों, वो टोटली जिसे कह सकते हैं पैरेलैक्स मेथड एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ रिलेटेड है, आईएमपी, and today we would like to focus on textbook. So first of all we'll revise this parallax method. You know that very well, it is very useful to measure the distance between planets, distance between the earth and planets. In short, for the measurement of very large distance, this type of method is applicable. Okay, so you can see here in this diagram, this one is the earth. We would like to measure the distance of this planet from the earth. So these are the two observing points, A and B, and these lines are called observer lines or observing lines. You know that very well. So these observing lines, you can see subtend some angle at this planet P, and this angle is called parallax angle. Here, whenever we are dealing with this type of point like planet and earth, then parallax angle is very small, because you know that planet is very far away from the earth. This is called the distance between these two observing points. It is also called the basis. Okay, so basis, that means the distance between two observing points. And after that we applied the concept of plane angle. What is the formula of plane angle? Plane angle, that means, you know that very well, length of arc upon radius. So if you consider this point P as a center, and if you consider this type of circular path, then you know that AB is considered as a length of arc or as arc. So what is the length of arc here? AB is equal to B. So plane angle theta is equal to length of arc B upon a radius. So what is the radius of this entire circular path? Obviously capital D. And from this equation, if capital D in the form of subject, then it becomes B by theta. B is simply the basis, that means the distance between two observing points, and theta representing parallax angle. Okay, so now what's your target? Your target to find capital D. So if you apply this equation, then you can easily find the distance between the earth and planet. So very IMP formula, and we also applied this formula in last lecture, and we discussed very important illustration number 2.3. Today we will also think about few more questions based on this parallax method, don't worry. And in last lecture, you know that this is the very interesting point. Dhoom part 1, Dhoom part 2, Dhoom part 3. Simply the conversion of degree to radian, minute to radian, and second to radian. 1 degree, 1.745 10 raised to minus 2 radian. Don't forget, whenever you are dealing with parallax angle, or whenever you are thinking about plane angle, then don't forget what is the unit of plane angle. It is radian. If you are thinking about solid angle, then its unit, you know, that's T radian. और मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि T रेडियन यानी कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में सबसे ज्यादा धूम मचाएगा प्लेन एंगल. So you can see whenever you are dealing with plane angle or parallax angle, then its value always should be required in the form of radian. So that's why you have to convert degree in the form of radian, or second to radian, minute to radian. So these are the conversion. ये तीन धूम पार्ट्स 1 2 3 तो दिमाग में होने ही चाहिए. So this is your last lecture, friends. In the last lecture we discussed this type of points, and based on these points we also solved one illustration number 2.3. Now today we would like to move in forward direction, but before moving in forward direction, first of all we would like to solve the question of homework, or we can say that whatever the question I gave in homework. So concentration required. Okay, so last lecture में
हमने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, पहले अपन लोग उसका जिसे कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन देखते हैं. सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड नाउ यू नो द वेरी वेल. सो अब अपन लोग धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आगे बढ़ने लगे हैं. सो बी अलर्ट और हो सके उतना प्रिपरेशन बढ़ाओ धीरे धीरे. डोंट वरी, ये मैराथन है, टूट नहीं पड़ना है. काफ़ी स्टूडेंट्स के सिनेरियो में ऐसा होता है कि शुरुआत में बहुत ही जबरदस्त हार्डवर्क शुरू करते हैं. डोंट डू दिस, करो मगर स्लोली स्लोली, क्योंकि अभी बहुत ही दौड़ना बाकी है. सो इन लास्ट लेक्चर you know that the diameter of earth is given, that means this distance b was given, it is 1.276 into 10 raised to 8 meter, and the parallax angle theta also given 1.8 degree. So what's your target? Your target to find the diameter of, you know that very well, sorry, your target to find the distance of the planet from the earth, that means capital D. So directly I can write, because we know that. कितनी बार मैंने बोला है बिंदास फेंको, भले आप कुछ ना जानते हो फिर भी ये स्टेटमेंट लिखने का. वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड प्लैनेट इज इक्वल टू basis upon parallax angle theta. Here basis already 1.276 into 10 raised to 8, but be alert about angle. You know that very well, whenever you are dealing with angle, especially you know that very well plane angle, then you know that parallax angle or plane angle should be required in the form of a radian. So here we have to repair this angle, because this angle is given in the form of degree, we have to convert in the form of radian. So no problem, डिग्री का डायरेक्ट कन्वर्जन हमारे दिमाग में है. 1.8 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 10 raised to -2 रेडियन. धूम पार्ट 1. सो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 1.745 10 raised to, you can see that -2, and if you simplify this portion, then directly I can write answer. It is 4.062 into 10 raised to 8 meter. It should be, you can see that your answer. अगर ये आपका आंसर है तो ये होना चाहिए. अगर ये आपका आंसर है तो वेरी गुड एंड हार्टी कांग्रेचुलेशन. एंड दो स्टूडेंट्स who have applied, we can say the concept, but they didn't get, we can say the answer. Don't worry, again apply your logic and try to solve it. So this is, you can see that the question based on parallax method. Now friends, today we would like to think about one more implication of plane angle to measure the size of a planet. अब अपन लोग अर्थ पे बैठे बैठे यहाँ से कितने किलोमीटर दूर जो प्लेनेट है उसकी साइज मेजर करेंगे. इवन अपन लोग आज अपने बैठे बैठे इधर ही बैठे बैठे आपके घर के रूम में बैठे बैठे अपन लोग सन का डायमीटर भी आज मेजर करने वाले हैं. बट हाउ इट इज पॉसिबल? सो जस्ट कंसंट्रेट टू मेजर size of a planet. Concentration required. First of all, we remove this portion. Okay, so now you can see here to measure the size of planet. This is the earth. You can see that this portion is earth. I have written here earth, and you are standing somewhere here. This is the position. P is the position on the surface of the earth. This is your planet. You can see this is your planet, and obviously size of planet we have represented very small because it is very far away from the earth. Okay, what is the diameter of the planet? That the diameter of the planet is small d. This is the diameter of planet. You can see these two ends of diameter subtend some angle at this point P. अगर diameter के दोनों ends को extend किया जाए point P के पास, then there is one angle is formed. This alpha angle which is formed at this point P on the surface of the earth. This alpha angle is actually formed or subtend by diameter of the planet. So this alpha is called simply the angular diameter of planet. Angular diameter यानी कि diameter में प्लैनेट का जो डायमीटर है उसने जो एंगल बनाया उसको कहते हैं एंगुलर डायमीटर. व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर डायमीटर ऑफ प्लैनेट? व्हाटएवर द एंगल इज फॉर्म्ड बाय द डायमीटर ऑफ प्लैनेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट.
डोंट फॉरगेट, दिस इज वेरी स्लिपरी केस, ये चिकना केस है। तो बोले चिकना केस है, डायामीटर, काफी लोग अल्फा को डायामीटर, बट इट इज द एंगुलर डायामीटर, सो डोंट फॉरगेट अल्फा रिप्रेजेंटिंग डायामीटर, सॉरी, it is simply representing angle, it is one type of angle, don't forget. So alpha is called angular diameter of planet, that means the angle formed by diameter of planet at any point on the surface of the earth. Now this diagram we can also represent like here, this is your small d, this is point P, and you can see diameter subtend some angle at this point P, let this angle is alpha. What is this distance? You can see distance between planet and the earth, this is earth, this is planet, the distance between planet and earth is capital D, you can see this distance. Once again I would like to apply concept of plane angle. तो प्लेन एंगल के लिए अपन लोग इस पॉइंट पी को सेंटर पर कैसा सर्कल ड्रॉ करते, देखो तो ये क्या बनेगा, दिस इज योर आर्क, और ये मैंने कितनी बार बोला फिजिक्स में दिल बड़ा रखने का, ये जो सेंट्रल पोर्शन या कर्व पोर्शन या स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि ये जो गिनती है वो 5, 10, 15 रुपीस में नहीं है, ये किलोमीटर करोड़ों में चलने वाले हैं। तो अपन लोग जानते हैं, तो अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा किलोमीटर तो हम कंसीडर भी नहीं करेंगे, क्योंकि किलोमीटर तो इस डिपार्टमेंट में थूलिए जैसा हो जाएगा, वी डिस्कस। सो this distance or this curved line both are, we can say that approximately same. So this is your length of arc, that means diameter of planet behaves like a length of arc. What is the radius? Radius, that means the distance between the earth and planet, and this is your angle. So as per plane angle, what is the definition of plane angle? Plane angle is the ratio of length of arc to radius. So in our case, what is the length of arc? Length of arc, that means D, it is the diameter of a planet. And what do you mean by radius? Radius, that means the distance between earth and planet, that means capital D. Tell me, out of these 3 points, what is your target? आपका टारगेट क्या है इसमें? Check it. We would like to find alpha, capital D or small d. Yes, few students have given answer small d your target, diameter of planet. कोई बोले वो आपको कैसे पता चल जाता है? अरे इधर बैठे बैठे प्लेनेट की साइज मेजर करनी है, साइज मतलब डायामीटर, सो हियर d representing diameter, तो diameter should be in the form of subject, so it is alpha multiplied by d. This small d is called simply the diameter of planet. Most IMP formula. So you would like to measure the diameter of any planet from the surface of the earth, then 2 points are required. Number 1, angular diameter, that is simply the angle, and number 2, distance between the earth and planet. Okay friends, so this is your most IMP formula, so very similar to parallax method. You know that in parallax method also, ये भी parallax है, don't worry, we applied that, sorry, this concept b upon capital D, and d is equal to b by 3, याद करो। तो b क्या था, distance between two observing points, and theta दिया parallax angle, and this equation gives idea about the distance between the planet and the earth. Here we have applied the same concept, but to find the other thing like diameter of, you can see that planet. So very very important formula, so don't forget. In this equation we have theta considered, we have considered theta parallax angle. Here parallax angle is in different name, it is called angular diameter of planet. Don't forget, एंगुलर डायमीटर, दैट मींस एंगल, इसलिए टेंशन में आने की जरूरत है नहीं। तो और ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, पूछने के चांसेस बहुत कम, डोंट वरी, इसका एप्लीकेशन है वो धूम मचाता है। तो अब अपन लोग ये फॉर्मूले को अप्लाई करना जरा शुरू करते हैं। सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। और आज अपना थीम मैक्सिमम टेक्स्ट बुक रिलेटेड है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक में दिए हैं। सो मैं क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं कि फेंकता हूँ, आप लोग जिसे कह सकते हैं कि ट्राई करना। चलो, दिस इज, यू कैन सी दैट सन, SUN, सन, SON, SUN, and this is the diameter of the sun. Let small d, you can see that small d representing diameter of planet. Here instead of planet we would like to measure diameter of the sun. यहाँ बैठे बैठे सन का डायमीटर मेजर करना है। दिस इज, यू कैन सी दैट अर्थ, ये देखो
इधर अर्थ के सामने प्लेनेट पपुड़िया जैसा था, इधर सन के सामने अर्थ पपुड़िया जैसी है, क्योंकि अर्थ बहुत ही साइज वाइज और डिस्टेंस वाइज दूर है, इसलिए इसका हमने बहुत पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर लिया है। एंड यू कैन सी द डायमीटर ऑफ द सन subtend some angle at the earth. This is your alpha. Here alpha. What do you mean by alpha? Alpha is called angular diameter of the sun. You can see. सन का डायमीटर जो एंगल बनाता है अर्थ के पास उसको कहते हैं एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन. Here, what's your target? Obviously, your target to find this distance. That means the diameter of the sun. कोई बोले सर अभी एक और चीज चाहिए. Yes, we have to think about this distance. It is called distance between the sun and the earth. Okay, this is your capital D. It is already given here. Don't worry. This is already for 1.496 into 10 raised to 11 मीटर. ये भी सब डिस्कस होने वाला है, फिर भी देख लेते हैं, ये दिया हुआ है, डोंट वरी. सो व्हाट इज योर टारगेट डी? सो अपन लोग वापस फेंकेंगे. एज वी नो दैट, कुछ भी नहीं जानते फिर भी बिंदास. अल्फा इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट फॉर्मूला ही फेंकते हैं, डोंट वरी. हियर वी नो दैट डायमीटर ऑफ द सन d is equal to alpha into capital D. You can see this is the direct formula. So d is equal to, what is your alpha? कोई बोले वो तो दिया नहीं, धूम मचा रहा खाली पीले. Yes, alpha, this is the requirement. Here alpha is given 1920 seconds. ये दो लाइन आए तो seconds, वन लाइन आए तो मिनट और डॉट आए तो डिग्री. Here angle is given in the form of second. अगर मैंने कितनी बार बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, एंगल के साथ डीलिंग करो, उसमें भी प्लेन एंगल, तो एंगल शुड बी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडियन. हियर यू कैन सी दैट एंगल इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ सेकंड. सो व्हाट्स योर फर्स्ट टारगेट? योर फर्स्ट टास्क टू रिपेयर दिस एंगल, दैट मीन्स टू कन्वर्ट दिस एंगल फ्रॉम सेकंड टू रेडियन. तो इसको सेकंड में से रेडियन में कन्वर्ट करने का फंडा आप लोग जानते हैं. मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इधर पहले अल्फा, अल्फा है 1920 सेकंड. हाउ कैन यू कन्वर्ट सेकंड इन द फॉर्म ऑफ रेडियन? 1 सेकंड इज इक्वल टू 4.85 10 raised to -6 रेडियन. तो इसको सीधा मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ. देखो 1920 मल्टीप्लाई बाय 4.85 10 raised to -6 रेडियन. तो ये जो सेकंड है वो डिसअपियर और उसके सामने आ गया रेडियन. तो ये जादू, ये धूम पार्ट 3 अप्लाई किया, यू कैन सी. सो नाउ वी कैन पुट अप द वैल्यू, सेट अप द वैल्यू. अल्फा ऑलरेडी 1920 मल्टीप्लाई बाय 4.85 10 raised to -6 रेडियन. What do you mean by capital D? It is the distance between the earth and sun. It is already given. It is 1.496 into 10 raised to 11. So if you simplify this portion, then you will get answer 1.39 into 10 raised to 9 meter. So this is, you can see that the diameter of the sun. You can see very important concept of angular diameter of planet we have applied, and we have solved one question, and we have obtained the diameter of the sun now, supreme. And this is your illustration number 2.4. ये आपके टेक्स्ट बुक का 4th नंबर का illustration हमने डिस्कस किया. एनालाइज फ्रेंड्स, जस्ट एनालाइज. ओके, सो यू कैन सी 4th नंबर, वेरी इजी. पंच पॉइंट एक ही है, कन्वर्जन ऑफ सेकंड टू रेडियन. काफी स्टूडेंट्स बहुत ही बड़ी गलती करते हैं. सी द 1920 मल्टीप्लाई बाय 1.496 into 10 raised to 11, रॉन्ग. ओके, एक और क्वेश्चन है जो आपको जिसे कह सकते हैं कि अब ट्राई करना है. सो ये मैं आपको ऑलरेडी जिसे कह सकते हैं कि होमवर्क में देता हूँ ताकि आप अपने आप सोल्व कर पाओ, इसलिए. सो इसका जैसा ही है, डोंट वरी. सो यू हैव टू सोल्व योरसेल्फ. So this is, you can see that your unsolved, sorry, illustration number 2.4. चलो एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. Now the planet Jupiter is at a distance of 124.7 million kilometers from the Earth. तो ये रहा अर्थ, यहाँ से ये जुपिटर,
What is the distance of this Earth and Jupiter? Jupiter is situated distance of 8.247 distance. This is capital D. Distance 824.7 million kilometers. Million kilometers. तो आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर में. मैंने डायरेक्ट कर दिया है मिलियन किलोमीटर्स को, क्योंकि मिलियन का आएगा 10⁵ और किलोमीटर का आएगा 10⁵. देखो 824.7 मिलियन यानी 10⁵, मगर किलोमीटर होगा, फिर किलोमीटर में से मीटर में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 10⁵, so ultimately 10⁸ meter. Okay, here parallax angle, this diameter of Jupiter, subtensum angle at this Earth, this is Jupiter J, this is alpha. Here alpha is given 35.72 seconds. Then what's your target? Then your target to diameter of Jupiter. This is your target D. So find D. But you have to perform at your home. This is, you can see that homework. जनरली मैं लिखता हूँ HW. कोई बोला ये की जुआ नहीं, ये होमवर्क है, मगर मेरे मुताबिक HW दैट मीन्स हार्ड वर्क. होमवर्क के लिए इम्पोर्टेंट चीज है हार्ड वर्क. घर पे इसको हार्ड वर्क के तौर पे लो. सो यू हैव टू सोल्व दिस वन होमवर्क. और ये जाने अनजाने में आपका टेक्स्ट बुक ही है. दिस इज योर टेक्स्ट बुक अनसोल्व नंबर 24. ओके, सो सोल्व योरसेल्फ एंड tell me the answer. Next lecture we'll discuss very IMP 2.24. Okay friends, now we would like to think about next point. So what is the next point? You know that here we have applied two most IMP methods. Number one, to find the distance between planets and Earth and distance between two planets. In short, we can easily measure the large distance between planet and Earth. In the second method, you can see we have obtained the formula which is very useful to measure the size of planet. Especially I can say that diameter of the given planet or Earth or Sun. तो हमने उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे और हमने पैरेलैक्स मेथड रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स देखे. नाउ वी वुड लाइक टू थिंक समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट. अब की जो कहानी है उसमें आपका दिमाग थोड़ा तेज तर्रार और चलना चाहिए. सो बी अलर्ट. बस अब ये जो टॉपिक है उसके ऊपर अपन लोग ज़्यादा रहने वाले हैं आज, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. सो बी अलर्ट. इसके बाद ये लास्ट पॉइंट है. इसके बाद अपन लोग शुरू करेंगे न्यू टॉपिक एरर. दिस इज मोस्ट IMP पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर डायमेंशनल एनालिसिस एरर्स आल्सो वी कैन से दैट वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. अगर ये जरा देखते हैं. Okay, what is we can say that your next point. So measurement of length in physics. देखो फिजिक्स से मैंने लास्ट पार्ट में भी बोला था, आज भी मैं एक वर्ड यूज किया, थोड़ा दिल बड़ा रखना है. फिजिक्स में आपको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी वर्क करने का आता है और जायंट द किलर लेवल पे भी जाना पड़ता है. तो ऐसी सिचुएशन में वेरिएशन बहुत है यूनिट्स में. तो आज अपन लोग लेंथ के बहुत ही छोटे से छोटे लेवल से लेकर जायंट द किलर तक जाते हैं. सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ. दिस इज, यू कैन सी दैट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट स्मॉल डिस्टेंसेस. सपोज टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस देयर इज यूनिट फर्मी. इट इज डिनोटेड बाय FM. So 1 Fermi is equal to 10⁻⁻15 meter. इसको याद कर लो. इन स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर फिजिक्स, तब अपन लोग इसका अप्लाई करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज इतनी होती है 10⁻15. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट 1 एंगस्ट्रॉम. यू आर ऑलरेडी फेमिलियर बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड 10th साइंस. 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर. So these are the two smaller units. अब अपन लोग जाते हैं जायंट द किलर. सबसे पहला पॉइंट आता है 1 AU. AU का मतलब है 1 एस्ट्रोनॉमिकल. यू कैन सी दैट यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, that means astronomical unit. What do you mean by astronomical unit? So it is simply
the average distance or the distance of the sun from the earth. Very IMP. Distance between the earth and sun, it is called 1 AU. So what is the value of 1 AU? It is obviously 1.496 into 10 raised to 11 meter. You can see this is 1 AU, very IMP. So this is your sun and this is, you can see that earth. This distance, ये भी distance ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं, मैंने बताया. So this distance is called simply 1 AU, the distance between the earth and the sun. It is called 1 astronomical unit. 1 astronomical unit is equal to 4.96, 1.496 into 10 raised to 11 meter. Now you think about the next, light year. Most IMP, 1 light year. What do you mean by light year? ये आप जानते हो, आपके पास इसका फंडा है. Whatever the distance traveled by light, it is simply the distance traveled by light in 1 year duration. In 1 year duration with speed of light. यानी कि लाइट की स्पीड तो जानते हो ना, जबरदस्त. इतने जिसे कह सकते हैं 10 रेज़ टू 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट जाती है. आप सोचो तो सही है लाइट ईयर कितना होगा. जूम स्पीड से लाइट की स्पीड तो आप जानते हो 3 into 10 रेज़ टू 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि करीबन 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट. 3 लाख किलोमीटर. तो आप सोचो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर. इसी तरह 1 आवर मिला के देखेंगे तो 24 आवर मिला के 1 डे, ऐसे 365 डेज मिला के 1 ईयर. अगर ये लाइट 1 ईयर तक पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे, कितना, इतना. इट इज कॉल्ड लाइट ईयर. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट in 1 year duration with speed of light, it is called light year. 1 light year, it is denoted by LY. It is 9.46 into 10 raised to 15 meter. You can see that this is the most IMP point. 9.46 into 10 raised to 15 meter. Supreme 1 light year का ये conversion याद रखना. And the last, it is parsec. मैं लिख रहा हूँ अच्छी तरह, पारसेक. यू कैन सी पारसेक. डिस्टेंस में अगर कोई बाप है, बाप, तो ये बंदा पारसेक. व्हाट डू यू मीन बाय पारसेक? इसको अपन लोग नेक्स्ट लेवल पे समझते हैं, मगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 into 10 raised to 16 मीटर. ये कैसे, क्यों, वो बाद में, डोंट वरी. So you can see this is called 5 का पंच. 1 2 3 4 5. मुझे 5 का पंच चाहिए. Once again, 1 फर्मी 10 raised to minus 15 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम 10 raised to minus 10 मीटर. कभी कभार इधर फर्मी की जगह ये लोग इसका फेम्टोमीटर भी कहते हैं. 1 फेम्टोमीटर, सब कुछ सेम, डोंट वरी. फेम्टो कहो या फर्मी, but because of scientist Fermi, it is called, you can see that 1 Fermi. So 1 Fermi 10 raised to minus 15 meter, 1 angstrom 10 raised to minus 10 meter. These both are, you can see that these both are smaller units, or we can say that applied at microscopic level. But now we have to think about the giant, the killer. So start with AU. 1 astronomical unit, that means the average distance of the sun from the earth, or what is the distance of, distance between the earth and sun. It is called 1 astronomical unit. It is 1.496 into 10 raised to 11 meter. Very IMP. 1 AU. 1 light year. The distance traveled by light in 1 year duration with 3 into 10 raised to 8 meter per second speed. It is called light year. 1 light year is equal to 9.46 10 raised to 15 meter. And the giant, the supreme one, parsec. 1 parsec equal to 3.08 10 raised to 16 मीटर. अब फ्रेंड्स, अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि इसके रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल शुरू करते हैं.
मुझे 5 का पंच चाहिए, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, एयू, एलवाई एंड पार्सेक। ओके, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आज ये लेक्चर का A to Z होमवर्क में लिख के 2 टाइम्स लिख के सबमिट करवा देने का है। होमवर्क डे टू डे होना चाहिए। मैंने आज ही 12th वालों को बोला कि स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का और एवरेज और मीडियम स्टूडेंट का एक ज डिफरेंस है दोस्तों। आपको भी मैं बता दूं, जितने भी बंदे 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग की बेस्ट कॉलेज में गए, उसका अगर आप एनालिटिकल चार्ट देखो हार्ड वर्क करने का, तो वो सब लोगों ने डे टू डे हार्ड वर्क किया है। जो बंदे डे टू डे वर्क कर लेते हैं, कुछ भी जिसे कह सकते हैं कि बाकी नहीं रखते, उसके लिए रिजल्ट बेस्ट ही आता है। सभी स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का अगर आप अच्छी तरह देखो, मैं क्लास में भी यही करवाता हूँ, अच्छे स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को स्टेज पे बुला के बताता हूँ कि तुम बोलो तुम्हारा टाइम टेबल, क्योंकि इससे पता चलता है कि स्टैंडर्ड स्टूडेंट किस तरह प्रिपेयर करता है। मैंने एक बात और नोट की, एक बहुत ही बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के मार्क्स देखते हैं, हाँ जोर मार्क्स लाया, मगर वो जोर मार्क्स लाने के लिए उस बंदे ने जो जोर हार्डवर्क की है वो कोई नहीं देखता। इसलिए कोई भी सक्सेसफुल बंदे के पीछे, वो सक्सेसफुल बंदा है, उसकी सक्सेस से देखने के पहले उस सक्सेस के पीछे जो रूट वर्क है, हार्ड वर्क है, उसको देखो दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए जो चले उसको डे टू डे होमवर्क में करना है। अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि एक आध क्वेश्चन शुरू करते हैं, मगर सबसे पहले मैंने बताया था कि पार्शियल रिलेटेड अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो जरा देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में जाते हुए आगे बढ़ते हैं पहले। ओके, अब दिस इज यू कैन सी दैट एनी पॉइंट पी, नाउ बी अलर्ट। और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस इज यू कैन सी दैट अ लाइन ऑफ एनी लेंथ, डोंट वरी, दिस टू एंड्स ऑफ लाइन ऑब्वियसली सबटेंड सम एंगल। ये देखो एंगल, सपोज ये एंगल है 60 डिग्री, चलो रेडी। अब आप ये इतनी डिस्टेंस की लाइन है, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, चेक इट। फिर एंगल देखो, नाउ दिस टू लाइन सबटेंड सम एंगल, टेल मी व्हाट हैपेंड विद द एंगल, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? ऑब्वियसली डिक्रीजेस, देखो डिक्रीज हो गया। तो पहले 60 डिग्री था, अब 60 डिग्री से कम ही होगा। अब यही लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ अगेन, कीप इन माइंड द लेंथ ऑफ लाइन रिमेन्स कांस्टेंट, डोंट फॉरगेट। मैं जो लाइन है उसकी लेंथ को कोई छेड़खानी नहीं करता हूँ, सिर्फ पीछे पीछे धकेलता जा रहा हूँ। अब ये दोनों एंड से वापस इधर एंगल बनाएंगे, यू कैन सी चेक दिस एंगल अगेन, व्हाट हैपेंड विद द एंगल, यू कैन सी दैट एंगल डिक्रीजेस। तो आप देखो कि ये लाइन को मैं यहाँ कहाँ ड्रॉ कर दूं, यू कैन सी लाइक दिस वन, देन व्हाट हैपन, you can see then this angle become very very small। ये तो इतना ही है, आप बोर्ड के सामने देख सकते हो, जस्ट चेक इट। रेडी, ये आप बोर्ड के सामने देख सकते हो। अगर और पीछे जाए, मगर मैं जिसे कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, उसको इतना दूर ले जाऊं, कोई बोले इतना दूर मतलब कितना, ताकि ये जो एंगल है, अभी देखो ये 60 डिग्री एंगल है, ये एंगल कम होता जा रहा है। देखो मुझे एंगल कम करते करते सिर्फ 1 सेकंड ही करना है। अब आप देखो 60 डिग्री पे इधर था, फिर इधर, तो मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर मुझे एंगल कम करना हो तो ऑब्वियसली मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। रेडी, वो भी कितना एंगल करना है, पहले 60 डिग्री में से डिग्री 1 डिग्री में आऊंगा, फिर 1 डिग्री में से 60 मिनट में आऊंगा, फिर 60 मिनट का 1 मिनट लूंगा, फिर 1 मिनट का 60 सेकंड लूंगा, 60 सेकंड का फिर 1 सेकंड। क्या बोल रहा हूँ देखो, पहले अपने पास 60 डिग्री था, 60 डिग्री में से मैं एंगल कम करते करते 1 डिग्री में आऊंगा। मुझे एंगल कम करना है मतलब मुझे दूर जाना है। अब आप सोचो 60 डिग्री में से 1 डिग्री में जाना है तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, मगर हमारा टारगेट 1 डिग्री नहीं है, हमारा टारगेट तो है 1 सेकंड। तो 1 डिग्री कंसिस्ट ऑफ 60 मिनट्स, फिर 60 मिनट्स में से अपन लोग 1 मिनट सोचेंगे, फिर 1 मिनट पता चला 60 सेकंड्स का है, फिर और यानी कि अपने को सिर्फ 1 सेकंड का एंगल बनाना हो
तो ये डिस्टेंस कितना होगा आप समझ लो। तो ये रहा आपका पॉइंट P, देखना बराबर, और ये जो डिस्टेंस है वो मैं ले रहा हूं, जिसे कह सकते हैं कि द एवरेज रेडियस, और आई कैन से ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ। ये जो डिस्टेंस है वो एवरेज रेडियस और ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ। ऑर्बिटल रेडियस का मतलब पता चला ना, ये सन है, उसके आजू बाजू अर्थ जो घूम रहा है, ये रेडियस को ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं। यानी इन शॉर्ट आई कैन से डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। सो व्हाट इज द ऑर्बिटल रेडियस? इट इज इक्वल टू 1 AU। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ दैट मींस 1 AU। तो ये डिस्टेंस 1 AU है, यू कैन सी दैट। अगर ये 1 AU जितना डिस्टेंस यानी कि 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर डिस्टेंस ये पॉइंट P के पास एंगल बनाता है, और कितना एंगल बनाने का है? 1 सेकंड, you can see. So in this situation, this distance it is called simply parsec or 1 parsec. So what do you mean by parsec? Parsec का मतलब होगा 1 parsec, that means the distance for which the average orbital radius or orbital radius of the earth, आपको ये ना लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो, the distance for which one astronomical unit distance subtends 1 second angle or form an arc of 1 second. देखो दोस्तों वापस समझते हैं, मुझे पता है ये थोड़ा सुप्रीम लेवल का डिस्कशन है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी स्ट्रगलिंग स्टेज में रहते हैं। तो वापस मैंने इधर जो समझाने की कोशिश की है वो मैंने बोला ये टॉपिक थोड़ा इमेजिनेशन रिलेटेड है। तो ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमें एंगल बहुत ही छोटा छोटा करना हो, देखो पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना, इतना छोटा एंगल करना हो तो हमें दूर जाना पड़े। तो मतलब 1 सेकंड एंगल मुझे करना हो तो बहुत ही दूर जाना पड़ेगा, और वो भी यूनिट देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो कोई पॉइंट P के पास 1 सेकंड एंगल बनाए, तब जो ये दूरी होगी पॉइंट और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में, ये जो दूरी होगी उसको 1 पार्सेक कहते हैं। So 1 parsec, that means the distance for which 1 astronomical unit, the distance for which one astronomical unit subtends 1 second arc. ये 1 astronomical unit है, 1 second जितना आर्क बनाए। देखो अब ये पॉइंट P को मैं ले रहा हूँ सेंटर, और ये मैंने ड्रॉ किया आर्क, यू कैन सी दैट। मगर ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितना होना चाहिए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 सेकंड एंगल बनाए, तब ये जो दूरी है या डिस्टेंस उसको कहते हैं पारसेक। या फिर अपन लोग कह सकते हैं कि ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ सबटेंस 1 सेकंड एंगल, देन व्हाटएवर द डिस्टेंस इट इज कॉल्ड 1 पारसेक। यानी पारसेक है वो सभी डिस्टेंस का बाप है। तो पारसेक का मतलब होगा द डिस्टेंस फॉर विच the average orbital radius of the earth or 1 astronomical unit subtends 1 second arc, then this distance is called 1 parsec. जैसे हमने देखा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। लाइट ईयर क्या था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर विथ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी तरह पारसेक है वो कौन सा डिस्टेंस है? पारसेक इज द डिस्टेंस फॉर विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंस 1 सेकंड आर्क। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अपन लोग आर्क के तौर पे लेंगे, आर्क के तौर पे लेंगे कब? सिर्फ 1 सेकंड एंगल बने तब। यानी दोस्तों ये दूरी देख सकते हो कितनी बड़ी होगी। सोचो सिर्फ अपन लोग इधर इतने डिस्टेंस में 60 डिग्री के लिए इधर इतना जाना पड़ा, तो ये तो जायंट किलर लेवल पे में जाना, प्लस बहुत एंगल छोटा करना है। देखो मैं समझा रहा हूँ, समझना। ये डिस्टेंस कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा समझो कि ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, समझो दो एक स्केल के मुताबिक 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर अगर 60 डिग्री एंगल बनाता है, उसमें से हमें 1 सेकंड में जाना हो तो कितना दूर? तो ये तो यानी होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल। यानी आप सोचो, मैं जिस लोगों का दिमाग चल रहा है उसके लिए थोड़ा और डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग केस। देखो ये रहा पॉइंट P,
अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ डिस्टेंस। ये कौन सा डिस्टेंस है देखो, बोर्ड में नहीं आएगा, ये डिस्टेंस बोर्ड में भी नहीं आएगा और जैसे जैसे तो लेवल पे आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो मैं डिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है वो है 1 AU, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी इसका एक सिरा है उस साइड जा रहा है, दूसरा सिरा नीचे। ये डिस्टेंस कितना है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ये सिरा को 11 मीटर 10⁻11 मीटर ऊपर ले जाओ, इसको 11 मीटर नीचे ले जाओ, फिर एंगल सबटेंड करो तो ये एंगल कितना जाएंगुलर आएगा, जबरदस्त। अब ये एंगल को अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल 175 डिग्री 170 डिग्री जितना होगा, बहुत ही दूरी लंबी दूरी पे। अब आप इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को पीछे पीछे लेते जाओ और अब ये एंगल को कम करते जाओ। 175 डिग्री में से अप्रोक्सीमेटली अपन लोग को 1 सेकंड में जाना है। यानी आप सोचो कितना दूर जाना पड़े, कितना दूर जाना पड़ेगा, 1 पार्सेक कितना। सो सुप्रीम ये जो डिस्कशन है फ्रेंड्स, वो मैंने बताया थोड़ा इमेजिनेशन, आप थोड़ा इमेजिन करो कि ये एंगल रिलेटेड पॉइंट, ये जिसका दिमाग चल रहा है ना चले वो टेंशन ना ले, सिर्फ इतना याद रखे। वो मैं सब ये समझाता हूँ, कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं, ये तो बहुत डेंजर है। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पंच यहाँ लगना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पार्सेक? 1 parsec, that means the distance for which 1 astronomical unit subtends 1 second arc। जो डिस्टेंस पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो 1 सेकंड की आर्क बनाए, उस डिस्टेंस को कहते हैं पार्सेक। तो पार्सेक का पता चला। दूसरा पार्सेक इस तरह भी बोल सकते हैं, द डिस्टेंस फॉर विच ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ? वही हुआ 1 है, यू डोंट वरी। The orbital radius of the Earth subtends 1 second arc. It is also called parsec. So अब अपन लोग पार्सेक में थोड़ा और डिटेल स्टडी करते हैं। जरा देखो, पार्सेक का पता हमने लगाया क्या पार्सेक है। जिसको समझ में आ गया वेरी गुड, ना समझ में आया वो सिर्फ डेफिनेशन याद रखे, बाकी कुछ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फ्यूचर में ये कोई इतना JEE नीट का बहुत बड़ा बादशाह बनने वाला नहीं है, मगर हाँ इस चैप्टर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए जरा देखो। अब मैं क्वेश्चन सोल्व करवा तो देखो, एक क्वेश्चन ऐसा है, वो क्वेश्चन को जरा पहले समझ लेते हैं। यू कैन सी दिस इज 1 पॉइंट P एंड दिस डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। चलो मुझे पार्सेक डिफाइन करना हो तो क्या करना चाहिए? दिस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड 1 सेकंड आर्क। ये 1 सेकंड जितना एंगल बना है पॉइंट P के पास, तो ये दूरी है, ये 1 सेकंड एंगल, ये जो दूरी है उसको कहते हैं 1 पार्सेक। तो पार्सेक का ये पॉइंट अपन लोग अब डिराइव करते हैं। देखो, सो हियर पार्सेक दैट मींस रेडियस, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क एंड दिस इज एंगल। तो देखो एंगल, रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क, सिंपल स्टोरी। एज पर definition of plane angle, what is your plane angle? So plane angle का फॉर्मूला याद करो। plane angle that means length of arc upon radius. So in our case, what is the length of arc? So here plane angle already theta is equal to, this is theta, theta is equal to, what is the length of arc? Length of arc, this is length of, it is 1 AU. And what is the radius? It is simply, you can see that 1 parsec. So what is the 1 parsec? So 1 parsec is equal to 1 AU upon theta. So values are simple. So 1 parsec is equal to 1 AU. What is the 1 AU in terms of meter? 1.496 into 10⁻11 meter upon theta. थीटा ऑलरेडी 1 सेकंड। देखना बचना ये 11 है और ये सेकंड के एंगल रिलेटेड है, तो मैं जरा इधर ही रिपेयर कर लेता हूं वरना लोचे हो जाएंगे। सो हियर थीटा यू कैन सी दैट 1 सेकंड, बट यू नो दैट सेकंड इज नॉट रिक्वायर्ड, हियर वी हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। सो डायरेक्टली कन्वर्जन में आता है 1 सेकंड इज इक्वल टू 4.85 10⁻⁻6 रेडियन। तो 1 सेकंड की जगह अपन लोग ये लिख दें। सो इंस्टेड ऑफ थीटा वी कैन सेट अप हियर 4.85
10⁻⁻6 रेडियन, यू कैन सी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 10⁻16 मीटर आंसर आएगा। दिस इज यू कैन सी द कन्वर्जन। इससे पहले मैंने डायरेक्ट लिखा था यू कैन सी, तब मैंने बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा। ये देखो, ये हमने पारसेक का डेरिवेशन लिए, पारसेक का 3.08 10⁻6 मीटर में किस तरह होता है कन्वर्जन, वो डिस्कस किया। मोस्ट आईएमपी सिंपल कंसेप्ट ऑफ प्लेन एंगल, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क 1 AU, रेडियस है पारसेक, सो लेंथ ऑफ आर्क की जगह 1 AU, रेडियस की जगह पारसेक, पारसेक को सब्जेक्ट को मिलाऊं तो 1 AU अपॉन थीटा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, 1.496 10⁻11 मीटर। थीटा का मतलब होता है एंगल, बट एंगल शुड बी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, जबकि इधर एंगल दिया है सेकंड में। मगर हमारे पास तो सीरीज है ना, धूम पार्ट 1, धूम पार्ट 2, धूम पार्ट 3, सो वी हैव अप्लाइड हियर धूम पार्ट 3 एंड सेकंड इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेडियन एंड वी हैव यूज्ड हियर सिंप्लीफिकेशन आंसर। तो जोरदार। और ये जाने अनजाने में हमने क्या कर दिया, ये बन गया आपका अनसोल्व्ड नंबर 2.19। टेक्स्ट बुक देखो, ये आपने 2.19 सोल्व कर दिया। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में आने के चांस है, डोंट फॉरगेट, वेरी आईएमपी। सो वी हैव डिस्कस 2.19, चेक इट। ये पारसेक को सिंपली डिफाइन करने वाला न्यूमेरिकल है, इतना याद रखो तो भी चले। तो 1 पारसेक दूरी कब होती है, जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 सेकंड की आर्क बनाए, या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जब 1 सेकंड जितना लेंथ ऑफ आर्क के तौर पे काम करे, तब दूरी जो मिलती है उसको कहते हैं पारसेक। मुझे पारसेक का ये यूनिट कन्वर्जन भी चाहिए। 1 पारसेक इज इक्वल हाउ मेनी मीटर, 3.08 10⁻16 मीटर। ओके फ्रेंड्स, वेरी आईएमपी 2.19, जस्ट चेक इट एंड आज ही ये होना चाहिए। अब अपन लोग एक और डिस्कशन करते हैं बेस्ट। आज ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के हैं, जरा देखना, बहुत ही आईएमपी। अब जो क्वेश्चन है वो इस पूरे लेक्चर का सबसे शानदार बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, सो बी अलर्ट अबाउट इट। मैं डेटा इसका पढ़ता हूँ ताकि पता चले। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप टेक्स्ट बुक भी यूज कर सकते हो। मैं भी इधर देखो टेक्स्ट बुक रिलेटेड ही डिस्कशन करता हूँ। 2.20 अब अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं अनसोल्व्ड नंबर 2.20, वेरी आईएमपी न्यूमेरिकल। सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे। तो ये जिसे कह सकते हैं सन है। देखो सोलर सिस्टम रिलेटेड डिस्कशन करें तो ये अपना जिसे कह सकते हैं कि सन, ये अर्थ रिवॉल्व होती है, वो अर्थ, दिस इज यू कैन सी दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सोलर सिस्टम, एंड द नियरेस्ट स्टार of our solar system is 4.29 light years away. How much is this distance in terms of parsec? Here a star, ready, this is you can see that star, and the name of this star is also given, it is called Alpha Centauri. What is the name of this star? Alpha Centauri भी कहते हैं इसको, you can see Alpha Centauri। तो ये जो स्टार है वो सिस्टम से यानी सोलर सिस्टम से कितनी दूरी पे है, यू कैन सी दिस डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन, दिस इज यू कैन सी 4.29 LY, दैट मींस लाइट ईयर। न्यूमेरिकल को बराबर समझो। ये सन, सुबह सन देखते हैं ना अपन लोग, सन कुछ लोग पानी पानी चढ़ाते, वो सन। ये अर्थ, यहाँ पे आप अगर अर्थ तो यहाँ पे नहीं रहेगी ना, कंटिन्यूसली घूम रही, देखो ये अपना सोलर सिस्टम, ये सिस्टम से 4.20 लाइट ईयर की दूरी पे इधर स्टार है। तो अपने को ये जो 4.20 लाइट ईयर डिस्टेंस है उसको पारसेक में रिप्रेजेंट करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस, हाउ मच इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पारसेक। तो लाइट ईयर को पारसेक में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह, कोई भी कन्वर्जन पूछे डोंट वरी, इसका कॉमन मेंबर ढूंढो। देखो लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। पारसेक को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। तो मीटर बन जाएगा कॉमन, वो बनेगा दोनों को जोड़ने का टाका। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हियर डिस्टेंस इज इक्वल टू 4.29 लाइट ईयर।
that means 4.29. What is the light year? 1 light year, it is 9.46 into 10 raised to 15 मीटर. ये कन्वर्जन जो दिमाग में नहीं होंगे तो स्वाहा, तो पूरा. तो ये हो गया 4.29 लाइट ईयर टू मीटर. यू कैन सी लाइट ईयर टू मीटर. तो इतने मीटर्स इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर हुआ. सिमिलरली वी नो दैट, फेंको बिंदास, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 10 raised to 16 मीटर. हम लोग जानते हैं इसलिए लिखा. ओके, ना जानते हो तो भी लिख सकते हो. पारसेक 3.08 10 raised to 16 मीटर, यानी इतने मीटर तक 1 पारसेक. तो पता चल गया ना क्या करने का. इतने मीटर तो 1 पारसेक, तो इतने मीटर का कितना, तो आंसर हो गया. सो 3.08 into 10 raised to 16 meter, then 1 parsec. So for 4.29 into 9.46 into 10 raised to 15 meter, then how many we can say that parsec. तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 into 4.29 into को क्वेश्चन मारना, इसलिए मैं इधर लिखता हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. So 4.29 into 9.46 into 10 raised to 15 divide by 3.08 into 10 raised to 16. और इसका सिंप्लीफिकेशन आप दोगे तो आंसर आएगा 1.32 पारसेक. देखो, यानी कि 4.29 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1.32 पारसेक. इतना पता चल गया. यानी कि अर्थ से या सोलर सिस्टम से ए स्टार मैं कहूं कि 4.29 लाइट ईयर की दूरी पे है, तो कोई बोले, आप बोलोगे सर ऐसा नहीं. सपोज हेतवी बोलती है, मैं जानता हूँ हेतवी मेहता, वो भी इसमें बैठी है, तो वो जानती, वो बोलते सर वो तो आप रॉन्ग बोल रहे हो, आपने बोला 4.20 लाइट ईयर, उसके बदले ऐसा बोले हेतवी कि 1.32 पारसेक. लेट द डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा सेंटुरी स्टार फ्रॉम द सोलर सिस्टम इज 1.32 पारसेक. सब कुछ सेम. तो हमने 4.29 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी पारसेक, 1.32 पारसेक. तो ये हमारा डिस्कशन हुआ. मगर ये पहला पड़ाव था. ये न्यूमेरिकल जिसके लिए मशहूर है 2.20, अब वो शुरू होने वाला है. तो सीट बेल्ट बांध लेना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए तो ओके, सर के लिए भी कभी कभार प्रॉब्लमेटिक बनता है. तो बी अलर्ट. तो मैं क्वेश्चन का डेटा और आगे बढ़ाता हूँ. हियर सर, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार. So when viewed from two locations of the earth 6 months apart, very IMP word, 6 months apart, 6 months apart, you can say. कहने का मतलब है हमें ये एंगल फाइंड करना है. पहले मैं यहाँ से देखता हूँ, यानी कि आई एम ऑब्जर्विंग दिस अल्फा सेंटुरी स्टार फ्रॉम दिस पोजीशन 1. अर्थ यहाँ पे, तब फिर अर्थ 6 महीने के बाद देखने का. 6 महीने, अब 6 महीने के बाद अर्थ कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी. क्यों, क्योंकि अर्थ एक साइकिल पूरा करे तो 1 साल निकल जाता है. तो 6 महीने में यहाँ पे, दूसरे 6 महीने में वापस, तो ये साल पूरा, ये 11 पूरा, ये 12 पूरा. रिजल्ट आ गया, देखना. तो ये पहला पोजीशन था, तब मैंने ये लाइन चेक की. फिर 6 महीने के बाद अर्थ यहाँ पे आ गए. अब मैं वापस इस स्टार को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये लाइन मिली. सो दिस लाइन्स आर कॉल्ड ऑब्जर्विंग लाइन, एंड दिस ऑब्जर्विंग लाइन सबटेंड सम एंगल, दिस अल्फा सेंटुरी स्टार, इट इज, यू कैन सी दैट थीटा. हमें ये थीटा फाइंड करना है, जिसको अच्छी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एंगल. सो योर टारगेट टू फाइंड पैरेलैक्स एंगल. बहुत ही चिकना केस, देखना बराबर. तो सबसे पहले ऐसा न्यूमेरिकल आए, तो मैं क्या करता हूँ कि ये लाइन को इधर ज्वाइन कर देता हूँ. देखते जाना, फिर इसको ज्वाइन कर देता हूँ. कोई बोले वो आप रट्टे मार के आते इसलिए आपको पता चल जाए, हमें कैसे पता चले. देखो इसका लॉजिक, हमें इतना पता चला कि हम पारसेक के साथ डीलिंग कर रहे हैं. पता चला, हमें इतना पता चला कि ये जो डिस्टेंस है 1.32 पारसेक है. रेडी. तो हमारे पास एक पारसेक का रेफरेंस है, जरा चेक करो, चेक करना. ये लॉजिकली जोरदार. दिस इज योर पॉइंट पी, ये रहा सपोज पॉइंट पी या स्टार, समझो. और ये जो दूरी है वो 1 पारसेक. इसका दिमाग तेज तरह चले और ना चलो, सभी के सभी बराबर देखे. ये दूरी है 1 पारसेक. अगर मैं इधर 1 सेकंड एंगल बनता हो
अगर ये दूरी 1 पारसेक हो और इधर 1 सेकंड एंगल बनता हो तो ये डिस्टेंस कितना होगा? याद करो अभी थोड़ी देर पहले 1 AU। याद करो व्हाट डू यू मीन बाय 1 पारसेक? इफ 1 AU subtends 1 second angle or if 1 AU form 1 second arc then this distance is called parsec। तो इधर चेक करो ये डिस्टेंस कितना है, चेक इट। अर्थ एंड सन के बीच की ये दूरी कितनी है? ऑब्वियसली 1 AU। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AU? द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन तो ये 1 AU है। तो आप देखो अगर 1 AU 1 सेकंड एंगल बनाए तो 1 पारसेक। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, अगर 1 AU ये जो 1 पारसेक के लिए कितना एंगल बनाते हैं? 1 सेकंड। फॉर 1 पारसेक डिस्टेंस व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड? 1 सेकंड। तो इधर 1 AU subtend some angle, we have no idea about this angle, don't forget this angle, but we have idea about this distance. So 1 AU subtends blank angle for 1.32 parsec। what is this distance? अब इसको मैं हटा के लिख देता हूँ 1.32 parsec। तो देखो 1 AU 1 parsec डिस्टेंस के लिए 1 सेकंड बनाए तो 1 AU 1.32 parsec डिस्टेंस के लिए कितना एंगल बनाए? ऑब्वियसली 1.32 सेकंड। जबरदस्त, पता चला। अगर 1 पारसेक है तो 1 सेकंड, तो 1.32 पारसेक हो तो कितना आंसर है? 1.32 सेकंड। तो इसी तरह ये डिस्टेंस चेक करो सेकंड, दिस इज आल्सो 1 AU। और ये भी जिसे कह सकते हैं कि एंगल बना रहा है स्टार के पास, तो ये भी कितना डिस्टेंस है? 1.32 पारसेक। तो ये भी एंगल कितना होगा? व्हाट इज दिस एंगल? इट इज आल्सो 1.32 सेकंड। यानी कि टोटल एंगल जो है वो हमें फाइंड करना हो थीटा। So what is the total angle? So I can write here for 1.32 parsec angle is subtended at a star is 1.32 second। देखो पहले हमने लिखा 1.32 पारसेक के लिए 1.32 सेकंड। So total parallax angle at a star is equal to 2 times of 1.32 second। क्यों 2 टाइम्स? एक 1.32 एक AU 1.32 बनाएगा, दूसरा AU, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 2 AU होगा। तो इट इज सिंपली थीटा इज इक्वल टू 2.64 सेकंड। दिस इज योर आंसर। मोस्ट IMP फ्रेंड्स, मार्वेलस। तो ये जो पॉइंट है वो जोरदार है, इसलिए अपन लोग वापस पूरा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे स्टार है उसकी दूरी फाइंड करनी है। को बोले वो तो दी है, वो दी थी 4.29 लाइट ईयर। चेक करो, हमें इस 4.29 लाइट ईयर को कन्वर्ट करना है पारसेक में। रेडी? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 जिसे कह सकते हैं लाइट ईयर है उसको सिंपली कन्वर्ट करो तो भी चले। अपन लोग मगर बेसिक मेथड से जाएंगे, डोंट वरी। तो अपने पास पता है 1 लाइट ईयर is equal to 9.46 10 raised to 15 मीटर। तो 4.29 लाइट ईयर कितना होगा? 4.29 into 9.46 10 raised to 15 मीटर। तो लाइट ईयर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और हम जानते हैं 1 पारसेक का मतलब होगा 3.08 10 raised to 16 मीटर, यानी इतने मीटर्स, दैट मींस 1 पारसेक। सो फॉर 3.08 10 raised to 16 मीटर, फॉर 3.08 into 10 raised to 16 मीटर 1 पारसेक। सो फॉर दिस मीटर्स हाउ मेनी नंबर पारसेक? तो हमने पारसेक फाइंड कर लिया, इतना पारसेक होगा। यानी कि 4.29 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1.32 पारसेक। तो ये जो दूरी स्टार की सोलर सिस्टम से पहले 4.29 लाइट ईयर के फॉर्म में थी, वो हमने किस में कन्वर्ट कर दी? पारसेक। यानी ये दूरी 4.29 लाइट ईयर का हो या ये दूरी 1.32 पारसेक हो, सेम। ओके, मैंने 1.32 पारसेक लिख दी। अब मुझे एंगल कितना बनता है वो फाइंड करना है। तो वो लोग कब एंगल बनाने का बोलते हैं? जब पहले अर्थ इधर हो तब, और उसके 6 महीने के बाद। तो अर्थ इधर होगा तो 6 महीने के बाद तो अर्थ इधर आ जाएगा, दूसरे 6 महीने के बाद वापस इधर, 1 साल पूरा ना, 6 महीने प्लस 6 महीने 1 साल पूरा। और जो अपना रोटेशन पीरियड है अबाउट द सन वो भी कितना है? 1 ईयर। तो मतलब अर्थ 6 महीने के बाद इधर आएगा। जब पहले अर्थ इधर था, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, तब हमने ये ऑब्जर्वर लाइन ड्रॉ की। अब सेकंड पोजीशन पे अर्थ आता है तब ये ऑब्जर्वर लाइन ड्रॉ की। ये दोनों लाइंस, ये जो स्टार है अल्फा सेंटुरी, उसके पास
एंगल बनाएगा टोटल इतना, ये टोटल एंगल है। मगर ये मैं सेंट्रल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इधर मुझे ये एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 और 2, दोनों इक्वली होंगे। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए हमने कौन सा लॉजिक अप्लाई किया, बराबर सुनना। तो इधर इसके लिए कंसेप्ट, अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कोई पॉइंट के पास 1 पारसेक दूरी के लिए कितना सेकंड बनाएगा एंगल, 1 सेकंड। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंस 1 सेकंड एंगल फॉर 1 पारसेक। तो 1 पारसेक के लिए 1 सेकंड, इधर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो है ही, मगर 1 पारसेक की वजह कितना है, 1.32। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.32 पारसेक के लिए कितना एंगल बनाएगा, 1.32 सेकंड। 1 पारसेक के लिए 1 सेकंड, सो 1.32 पारसेक के लिए कितना बनेगा, 1.32 सेकंड। इसी तरह अर्थ इधर आएगा तो ये 1.32 पारसेक के लिए वापस इधर 1.32 सेकंड बनाएगा। तो टोटल एंगल कितना होगा पॉइंट P के पास, 1.32 दैट मींस 2.64 सेकंड। सुपर। दिस इज यू कैन सी दैट योर 2.20 very IMP numerical, you have to consider it, don't forget, one of the supreme numerical we have discussed, ये चकाचक हो जाना चाहिए मोस्ट IMP। और इसी अंदाज में लिखना, देखो मैंने जो लिखा वही अंदाज से आप लिखोगे तो बोर्ड में भी कोई मार्क्स यानी कि टेक्स्ट बुक स्कूल में भी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, डोंट वरी। तो मोस्ट IMP। अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करें, पहले अच्छी तरह देख लो आप, वेरी IMP। Now you think about one more, okay? तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, मगर फिर भी अपन लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस 2.19, 2.20, 2.24, illustration number 2.4, and you know that answer number 2.24। तो हमने देखा था आज सब टेक्स्ट बुक रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कशन करने के थे, एक और देखते टेक्स्ट बुक रिलेटेड ही, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने किया 2.19, 2.20। अब क्वेश्चन है द सन इज अ हॉट प्लाज्मा एंड विथ इट्स इनर कोर एट टेंपरेचर एक्सीडिंग 10⁷ केल्विन। अब देखो आप डेटा फिजिक्स का पढ़ते हो ना, तो फिजिक्स का डेटा ही 50% डरा देता है। फिजिक्स डेंजर सब्जेक्ट तो डेटा से ही बनता है। काफ़ी स्टूडेंट्स फिजिक्स का डेटा रीड करता है, कोई भी क्वेश्चन का डेटा सुन के छोड़ देता है, इतना डेंजर डेटा देते हैं। डोंट वरी, डेटा कोई भी हो बेटा, अंदर जाना है, लड़ना है, सामने जाना है। देखो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ 2.23। अब इसका डेटा डेंजर इतना है कि काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। देखो सरफेस टेम्परेचर 6000 एट दिस हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेनिंग सॉलिड। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट in what range do you expect the mass density of the sun if the range of density solid and liquid or gases। सन का रेडियस दे दिया है और मास ऑफ द सन दे दिया है। चलो दिस इज योर सन, सन दैट मींस वन टाइप ऑफ स्फीयर और नॉट। वी वुड लाइक टू फाइंड डेंसिटी ऑफ सन। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी दैट मींस मास अपॉन वॉल्यूम। So density denoted by rho, rho is equal to mass m। What is the volume of sphere of radius r? कोई भी sphere हो radius r का volume आप जानते हो 4/3 pi r cube। So what is the mass? Mass here already given 2 into 10⁻²। You can see that 30 kg. Check the data। 4/3 pi की वैल्यू 3.14। What is the radius? Radius भी डेटा में दी है 7 into 10⁸8। 7 into 10⁸8, मगर इधर आएगा क्यूब। अब इसको जिसे कह सकते सिंप्लीफाई करो तो ये आंसर आएगा जिसे कह सकते 1.4 into 3 kg per meter cube। दिस इज योर आंसर। आंसर भी कुछ मतलब बताता, देखो इसका मतलब ये सन के पर यूनिट वॉल्यूम यानी सन के 1 मीटर वॉल्यूम में इतना मास ठुसा है। अनबिलीवेबल, ये कोई जैसा तैसा नहीं है, 1 मीटर क्यूब। आप सोचो अगर मैं इसको सिंपल सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो भी पता चले, यानी 1 मीटर क्यूब। देखो ऐसा 1 मीटर क्यूब का एक क्यूब बनाओ, इसके अंदर आप सोचो कितना मास भरा है, 1.4 10⁻3। 1.4 को छोड़ दो 10⁻3 देखो तो अप्रोक्सीमेटली 1000 kg को दिख ही रहा है।
तो आप देख सकते हो जबरदस्त। तो इतना केजी मास सिर्फ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में है, ये सन की डेंसिटी है, जोरदार है। इसीलिए सन का ग्रेविटेशन भी जोरदार है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 8 में डिसाइड करेंगे, सुप्रीम। सो दिस ऑल पॉइंट्स आर वेरी आईएमपी। आज हम जेडब्ल्यू नीट की गली में नहीं गए क्योंकि ये सभी टॉपिक्स है वो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है। तो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है, क्वेश्चन है, आपको वापस एक बार घर पे सोल्व करने 2 टाइम्स लिख के बराबर। अगला लेक्चर अब रेडी होना है जोरदार, वो बनेगा एरर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक। इफ यू एनी डाउट देन कॉल मी, डोंट वरी, बट रिवाइज ऑल लेक्चर। जब भी फ्री पढ़ो तब रिवाइज करते रहो, एंड बी वी कैन से द साउंड इन टर्म्स ऑफ लॉजिक। थैंक्स।